So now let us look at another topic, strings in C, and this is again very interesting topic because in this topic you will be learning many string handling functions. Basically, we get large number of functions which are ready-made in nature, means the language developers have written those functions and they are available in the form of libraries. And those functions we can apply over string manipulation job. Now, when we talk about string manipulation, what actually string manipulation means is, say, for example, we have a name. First thing is, what is a string? String is nothing but sequence of alphabets or characters or even digits, you can say. For example, your name is a string, my name is a string. Whatever here we have on this PPT are in the form of strings only. Prodigy tutorials, I have written its name of my channel. It is again a two-word string. First word is Prodigy, the second one is tutorials, and strings and all, everything is string here on this PPT. So when we talk about string manipulation, say for example, if I give you a job that whatever string you can see here in the this black color rectangular box, which is shown in white color font, please convert this string into all uppercase. Means all alphabets in the string should be in uppercase. तो मैनिपुलेशन हो गया ना, यू नीड टू मैनिपुलेट इट. मतलब जैसा ये प्रोडिजी ट्यूटोरियल का सब कुछ कैपिटल में दिख रहा है वैसा इसको कैपिटल में बना दो, ऐसा काम बोल सकते हैं आपको. मैं आपको कह सकता हूं कि ये जो वर्ड है स्ट्रिंग, इसका रिवर्स निकाल के दिखा दो. मतलब SGNIRTS कुछ उल्टा करने वाला काम. मैं आपको कह सकता हूं कि ये जो एक स्ट्रिंग है इसको एक नए वेरिएबल में कॉपी कर दो, मतलब स्ट्रिंग कॉपी इज अनदर ऑपरेशन, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन. So whatever operations, whatever type of manipulations we need to do on strings, we'll be learning in this particular topic, strings in C. So let us quickly look at what this topic is all about. We have a formal definition or description of the word strings. A string is a sequence of characters and oblique or. मतलब दोनों ही चीजें होंगी, सिर्फ characters नहीं होंगे, numbers भी हो सकते हैं. You look at this password, you have characters, you have numbers, you have a special symbol also. So this IITM 123 plus, it is a string, alphanumeric string. This is all alphabets, means this string only has alphabets. Hello world. तो स्ट्रिंग्स में अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, सिर्फ अल्फाबेट्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स विद डिजिट्स हो सकते हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल सिंबल्स यानी प्लस माइनस स्टार एस्टेरिस्क कुछ भी इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं. तो स्ट्रिंग क्या हुआ? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड नंबर्स. Strings are important in many ways in programming context because strings, at times you need to store your own name. Student's name is something which is very important. We need to store it somewhere. Other attributes that will be of string type in nature, we can say course, city name, street. अब आपका पता स्टोर करना है, आपका एड्रेस नंबर में तो नहीं होगा ना. हाउस नंबर हो सकता है, मगर हाउस नंबर भी अगर ध्यान से देखोगे तो वो B61H/A कुछ इस तरीके के होते हैं आजकल. सो you need to deal with data which will definitely have character values. I mean to say alphabets, special symbols, and digits also. So strings are important. Now, no explicit type means we have explicit types like int, char, float, long, double. So many explicit ready-made data types are available. But believe me, originally in C we never had any data type like string. Later on, a class has been added to C++, string class. नई compilers में मिल जाती है, Java में तो होती ही है. But in C, believe me, there is no inbuilt type like string. Now, in order to store string or represent strings in C, what we need is an array of characters. Means, I repeat, we need an array. But the type of that array will not be int. It will not be float. It will not be double. Rather, the type of that array will be char, C-H-A-R, char. And when we declare such an array, we can store alphabets, we can store special symbols, we can store digits into it. ये सब हम कर पाएंगे. So representing strings in C, they are stored as arrays of characters. Array can be of any length. End of a string is indicated by a delimiter, that is \0. अब ये एक नई चीज है, जो भी स्ट्रिंग आप बनाते हो उस स्ट्रिंग का टर्मिनेटर, स्ट्रिंग कहां पे खत्म होगी, उसका अंत कहां पे होगा,
उस एंड को, उसको दर्शाने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने, उसको दिखाने के लिए आपके पास में एक डिलिमीटर होता है जिसको कहते हैं \0। आपके कीबोर्ड में \/ अवेलेबल है, डिजिट्स में 0 वाली की भी अवेलेबल है। आप ये दोनों कीज को दबाते हैं, पहले \/ को फिर 0 को, उल्टा नहीं कर सकते, // नहीं लगा सकते। ये ऐसा वाला पीछे को झुका हुआ है इसलिए इसको \/ कहते हैं, जो आगे की तरफ झुकता है उसको // कहते हैं, दिस इज \/। ये \0 \/ और 0 को दबाने से बनता है। सिंगल कोड में लिखा है, मतलब ये दोनों टोटलिटी में एक ही चीज माने जाएंगे। मतलब जैसे लेटर ए एक लेटर है, लेटर एस एक सिंगल लेटर है, ये स्पेस भी एक सिंगल स्पेस है इसलिए सिंगल कोड में लिखी हुई है, टी को सिंगल कोड में, आर को सिंगल कोड में, आई एन और जी को सिंगल कोड में लिखा है। उसी तरह से ध्यान दीजिए \0 को भी सिंगल कोड में लिखा। मतलब हमारा कंपाइलर इस दोनों चीजों को मिलाकर एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करेगा और इस कमरे के लिए 1 बाइट मिलेगी। कैरेक्टर एरे ऑन 16-bit machine will occupy 1 byte for every character, be it an alphabet, be it a space or a digit or even this \0. It is also going to occupy 1 byte of memory in 1 byte of space in memory. ठीक है, अब ये तो 3 बातें ये हो गई हैं \0 के बारे में बताया। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ काम आता है, कैसे यूज होता है, अभी मैं सब आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। String literal values are represented by sequence of characters between double quotes. मतलब अगर स्ट्रिंग्स बनानी है तो आप डबल कोड में पूरी स्ट्रिंग ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखी है आशीष स्पेस कुमार, तो ये एक मल्टीवर्ड स्ट्रिंग है जिसमें फर्स्ट वर्ड आशीष है, सेकंड वर्ड कुमार है। दोनों वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए एक सिंगल स्पेस या मल्टीपल स्पेस आप जितनी चाहे टाइप कर सकते हैं। ये पूरी चीज टोटलिटी इज अ स्ट्रिंग एंड इज अ मल्टीवर्ड स्ट्रिंग बिकॉज देयर आर 2 वर्ड्स इन इट। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में आपको डबल कोट्स में सिर्फ एक खाली जगह दिखाई है, मींस इट रिप्रेजेंट्स एम्प्टी स्ट्रिंग। दिस इज अगेन अ 2 वर्ड स्ट्रिंग, मल्टीवर्ड स्ट्रिंग है, 2 वर्ड्स हैं इसमें। ये जो लेटर ए है ये एक सिंगल वर्ड स्ट्रिंग है। अब आप लोग कहेंगे सर ये तो सिंगल कैरेक्टर है, तो नीचे देखो आपको यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये डबल कोट्स में लिखा हुआ ए इज डिफरेंट फ्रॉम ये वाला ए। ये वाला ए इज एन अल्फाबेट ए, दिस इज नॉट एन स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग नहीं कह सकते, दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग बट दिस इज अ स्ट्रिंग। व्हाई सो? बिकॉज वन मोर थिंग इज अवेलेबल हेयर, \0। आशीष कुमार में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6, सातवीं है स्पेस, आठवां है के, 9 10 11 12 तो आर हो गया। इस 12 के बाद एक 13वां अक्षर और है जो दिख नहीं रहा है, वो है \0 स्ट्रिंग टर्मिनेटर, जो अभी पिछली स्क्रीन पे आया था, ये वाला। ये अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ अवेलेबल होगा, तो कंपाइलर उसको अकाउंट फॉर करेगा, वो उसको मान के चलेगा कि वो है। इसलिए ये डबल कोड में लिखा गया ए इज डिफरेंट फ्रॉम ये वाला ए। दिस ए विल ऑक्यूपाई 1 बाइट, दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग बट दिस इज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बनानी है तो सिंगल कोड में ए लिखो, फिर सिंगल कोड में \0 लिखो, दोनों चीजों को एक कैरेक्टर एरे में डालो, वो कैरेक्टर एरे एक स्ट्रिंग कहला सकता है। ये सिंगल इंडिविजुअल ए एक स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। ए इज अ सिंगल कैरेक्टर वैल्यू stored in 1 byte as the ASCII value for A, while double quotes wala A is an array with 2 characters. First is no doubt A, the second one is a character value \0. Totality it will occupy 2 bytes. तो ये लेगा 1 byte, ये लेगा 2 byte, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। इससे स्ट्रिंग बनानी है तो एक कैरेक्टर एरे बनाना ही होगा जिसमें सिंगल कोड के अंदर \0 आपको टाइप करना होगा। मैंने यहाँ पे किया, आपको एक कैरेक्टर एरे बनाना होगा जिसमें आप 2 कमरे रखेंगे, पहले कमरे में ए लिखेंगे, दूसरे कमरे में \0 ए लिख के टाइप करेंगे, \0 लिख के, वो आपको अलग से करना होगा, ठीक है। तो दोनों चीजों में फर्क मालूम होना चाहिए। प्रैक्टिकली आपको कोड में डिमॉन्स्ट्रेट कर दूंगा मैं कि क्या फर्क होता है। अब सवाल ये आता है कि आपके पास एक स्ट्रिंग हो हेलो और आपको कोई कहे कि हेलो के फर्स्ट कैरेक्टर को डिस्प्ले कर दो। ये देखो हेलो एक स्ट्रिंग है, तो हेलो स्ट्रिंग को कंप्यूटर ने कैसे सोचा होगा?
उसने एक कमरा इस H के लिए, एक कमरा इस E के लिए, एक इस L के लिए, एक इस L के लिए, एक इस O के लिए और एक कमरा बैकस्लैश 0 के लिए बनाया होगा। मतलब टोटल कितने कमरे बनाए होंगे? आप अगर गिनती गिने तो 1 2 3 4 5 एंड 6 रूम्स। हेलो को रखने के लिए कंप्यूटर आपके लिए 6 कमरे रिजर्व करेगा, 5 कमरे इस डाटा के लिए, 6 कमरा आपके बैकस्लैश 0 के लिए। तो टोटल 6 कमरे होंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि ये H किस कमरे में है, तो एरे में भाई पहला कमरा 0 कहलाता है। ये किस कमरे में है? कमरा नंबर 1 में। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी स्ट्रिंग में कमरा नंबर 1 में क्या सामान है वो प्रिंट करा दो, तो पहले कमरे में क्या सामान है जिसका इंडेक्स वैल्यू 1 है? E। तो आउटपुट क्या आएगा? E। आपको एक अक्षर प्रिंट करना है तो आप %C लगाएंगे, यू वांट टू प्रिंट ओनली वन कैरेक्टर। While on the other hand, if you like to display the entire thing HELLO on the screen, ये पूरा हेलो स्क्रीन पे लिखना है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप %S लगा के इस हेलो को स्क्रीन पे ला सकते हैं। फॉर स्ट्रिंग प्रिंटिंग यू हैव %S, फॉर इंडिविजुअल कैरेक्टर प्रिंटिंग यू कैन यूज %C। so %C is for printing one character, a particular character, any character you can print. %S is for printing the entire string on the screen. So during compilation, C creates a space for each character in the string. Hello के हर अक्षर के लिए जगह बनाता है plus an extra space for a string terminator that is \0। तो ये जो \0 यहाँ नजर नहीं आ रहा है, कंपाइलर उसके लिए भी एक जगह रिजर्व करके चलेगा। ठीक है, तो ये तो थी इसके स्ट्रिंग लिटल्स के बारे में बात। अब बात करते हैं यहाँ पे अगर कुछ, ये तो फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ, ये टिप्स एंड ट्रैप्स हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी हैं। से फॉर एग्जांपल यू क्रिएट 2 एरेज। देखो 6 लिखा है साइज, दिस इज माय फर्स्ट एरे। नाम तो आप कुछ भी ले सकते थे, मैंने नाम ले लिया string1। यू कैन गिव एनी नेम टू दिस कैरेक्टर एरे। दिस इज एन एरे ऑफ कोर्स बिकॉज वी आर यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। हाउ मेनी रूम्स आई हैव बुक्ड? 6 रूम्स। What data I have kept in it? HELLO. It's a 5-letter word. And the 6th space that I have taken will be for \0. So this way you can declare your string. So I have declared 2 strings here. One is hello in this one. Second is in string 2. इत्तेफाकन दोनों में सेम डाटा है, मगर अगर आप सोचते हो कि आप इसको $= से कंपेयर करोगे तो आपको बोलेगा हाँ जी दे आर इक्वल, तो ऐसा नहीं होने वाला, ये फॉल्स बोलेगा, क्योंकि $= से स्ट्रिंग्स कंपेयर नहीं होती हैं। इनके डाटा को, इसमें हेलो है, इसमें हेलो की जगह कुछ और है या हेलो ही है, इन दोनों चीजों को डाटा को कंपेयर कराना हो तो string1 = string2 मत लिख देना। इंटीजर्स के केस में आप ऐसा ही करते थे, एक इंट वेरिएबल में x = 10 हो, दूसरे में y = 10 हो, तो आप x = y लिख लेते थे। तो ये $= इंटीजर के लिए, फ्लोट के लिए, डबल के लिए तो काम करता है, मगर स्ट्रिंग्स को कंपेयर कराना हो तो इससे कंपेयर मत करना, वरना आपको जवाब मिलेगा फॉल्स, क्योंकि ये स्ट्रिंग के डाटा को नहीं बल्कि ये जो स्ट्रिंग्स का पता है वो है इसके पास। आपको मैंने बताया है एरेज आर ट्रीटेड एज पॉइंटर्स ओनली, तो इसको कंपाइलर क्या मान के चलेगा? इसका एड्रेस उठाएगा, वो दोनों एड्रेस कंपेयर कर रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक अलग एड्रेस पे होगा, ये एक अलग एड्रेस पे होगा, सेम कहां से आएंगे? वो तो फॉल्स ही बोलेगा ना आपको, बिकॉज इट नेवर कंपेयर्स डेटा। डाटा कंपैरिजन के लिए यू हैव अ फंक्शन strcmp, पढ़ाऊंगा आगे, आएगा स्लाइड में आगे, तब बताएंगे आपको। वी हैव स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन, रेडीमेड फंक्शन आल्सो। In fact, we'll be creating our own function also for comparing strings. But please do remember, never ever try to compare strings using this $= You will always get false. ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है, इसलिए यहाँ पे सब कुछ आपको दिखाया। तो moral of the story, do not compare two strings using $= instead use a function strcmp. Very soon I'll teach you what is this function all about, how it works. आगे आएगा स्लाइड में, देखिएगा, उसको समझाएंगे आपको। अब सवाल आता है कि एक स्ट्रिंग को स्टोर कैसे करें अपने प्रोग्राम में। तो आपको अपने प्रोग्राम में स्ट्रिंग स्टोर करने के 2 तरीके होते हैं। आप एक कैरेक्टर एरे बना सकते हैं जिसमें आप हेलो लिख सकते हैं, या आप एक कैरेक्टर पॉइंटर बनाइए और हेलो लिख दीजिए। अब होगा क्या, पहले वाले केस को समझिए। वो क्या करेगा, आपने देखिए यहाँ पे एरे का साइज नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ इनिशियलाइजेशन हो रहा है। कंप्यूटर अपने आप गिनती गिनेगा, 1 2 3 4 5 और \0 का 6, वो यहाँ पे अपने आप 6 सेट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 6 लिख दूं या मैं 6 ना लिखूं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता,
आपको अपना नाम स्टोर करना हो तो आप बनाइए कैर एस नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स डबल इक्वल टू आपका नाम, जो भी आपका नाम है आप अपना नाम रख लीजिए। कंप्यूटर अपने आप गिन लेगा कितने अक्षर का नाम है और वो एरे को उतना बड़ा बना लेगा। ठीक है, ये तो है एक तरीका। दूसरा तरीका है कि आप एक पॉइंटर बना लीजिए, कैरेक्टर टाइप का बनाया है, देखिए इंटीजर नहीं है, कैरेक्टर्स ही रखने हैं मुझे मेमोरी में। तो ये क्या करेगा, मेमोरी में कोई खाली जगह ढूंढेगा, जहां भी इसको खाली जगह मिल जाएगी उस खाली जगह पे आपके डाटा HELLO और \0 को रखाएगा और वो जहां पे भी रख के आया है उसका एड्रेस लाके आपको इस पॉइंटर में दे देगा। तो आप अपनी स्ट्रिंग को जहां चाहे मेमोरी में रखवा लीजिए, उसका एड्रेस आपके पास पॉइंटर में आ गया। तो आप सबको मालूम है पॉइंटर में एड्रेस मिल जाए तो मैं पॉइंटर को प्लस प्लस करके आगे जा सकता हूँ, सारे डाटा को उठा सकता हूँ, है ना। तो सवाल तो यहाँ पे ये आता है कि जब स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं, तो ये वाला तरीका अच्छा है कि पॉइंटर वाला तरीका अच्छा है? बिलीव मी, पॉइंटर वाला तरीका अच्छा है, ये तरीका बेकार है। क्योंकि यहाँ पे बेकार क्यों है, नीचे एग्जाम्पल में समझाते हैं। मान लीजिए आपने दो स्ट्रिंग्स बना ली इस तरीके से, एक करेक्टर एरे बनाया जिसमें आपने साइज नहीं लिखा और हेलो रख दिया, मतलब 6 अक्षर होंगे। HELLO में \0 को भी काउंट कर लें तो 6 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 अपने आप सेट हो जाएगा। str1 एक करेक्टर एरे है जिसमें 6 कमरे कंपाइलर आपके लिए बुक कर देगा, आप वहां पे हेलो रख सकते हैं। फिर मैंने एक खाली एरे और ले लिया है str2 जिसमें मैंने 10 कमरे ले लिए हैं। ठीक है, ये तो है एक काम मैं एरेस के थ्रू कर रहा हूँ। नीचे देखिए मैंने दो पॉइंटर्स बनाए, एक करेक्टर पॉइंटर को मैंने गुड मॉर्निंग दिया और दूसरा खाली ले लिया करेक्टर पॉइंटर। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको ये पॉइंटर वाला तरीका अच्छा होता है ये बताना चाहता हूं। उसके लिए यहां देखिए, मान लीजिए मैंने str2 इक्वल टू str1 लिखा। क्या लिखा मैंने, str2 इक्वल टू, देख लीजिए कोड देख लीजिए, str2 इक्वल टू str1। मैं क्या चाहता हूं, str1 का समान str2 के अंदर आ जाए, जो कुछ str1 में है वो किस में आ जाए, str2 में आ जाए, कॉपी हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। आप देख लो str1 में क्या है, हेलो है। मैं चाहता हूँ मेरा ये हेलो किस में आ जाए, str2 में आ जाए। उसके लिए अगर मैं इस तरीके से काम करूंगा तो सर मुझे एरर देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल एरर आ जाएगा। ठीक है, क्यों आएगा अभी बताएंगे आपको, ये एरर है। मगर आप यहाँ पे एस के अंदर क्या लेके चल रहे हैं, गुड मॉर्निंग। आप इस गुड मॉर्निंग को क्यू के अंदर कॉपी करना चाहते हैं, आप एस वाले डाटा को क्यू में डालना चाहते हैं, तो आप ऐसे क्यू इक्वल टू एस लिखेंगे, ये चल जाएगा। हुआ क्या, एस में क्या था, एड्रेस, तो आपने किस में डाल दिया उस एड्रेस को, क्यू में। एस क्या है अपने आप में, आप ध्यान से देखिए, एस क्या है, एक पॉइंटर है, तो पॉइंटर में क्या होगा, एड्रेस। ये क्या है, ये भी पॉइंटर है, तो इसमें एड्रेस डाल सकता हूं ना। मतलब जो कुछ एस की जेब में पड़ा हुआ है, एस की पॉकेट में जो कुछ पड़ा है, जो एड्रेस पड़ा है, वो मैं क्यू में डाल सकता हूँ। तो कह रहा है बिल्कुल डाल सकते हो, इट वर्क्स, आप ऐसा कर सकते हो। अब आपकी मेमोरी को दो पॉइंटर पॉइंट करने लग जाएंगे, एस से भी उसी मेमोरी को पॉइंट कर सकते हो, क्यू से भी उसी को पॉइंट कर सकते हो। आपके एक ठिकाने के दो पते हो चुके हैं, आपका पता एस में भी है, आपके पास पता क्यू में भी है। यू हैव क्रिएटेड टू पॉइंटर्स पॉइंटिंग टू सेम लोकेशन, ये आप कर सकते हैं। मगर यहाँ देखिए क्या हो रहा है, str1 के डाटा को मैं str2 में डालने की कोशिश कर रहा हूं, ये एरर आ जाएगा। वो कहेगा str1 के पते को str2 में डालना चाह रहे हो, क्योंकि str1 क्या है, व्हाट इज str, ये तो एक एरे था ना। एरे का समान इस तरह से दूसरे एरे में नहीं जाता है, उसके लिए स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन सीखना होता है। मतलब कोई सोचे कि मैं इस एरे के समान को इसमें कॉपी कर दूं, नहीं कर पाओगे, नहीं होगा, एरर आएगा, ट्राई करके देखना। तो ये एरे वाले तरीके से तो नहीं होगा, पॉइंटर वाले से हो जाएगा, मतलब पॉइंटर बेटर है। अब पॉइंटर और भी बेटर है, देखो नीचे समझो। मान लो मैंने str1 में हेलो डाल दिया और बाद में आपका दिल करे कि str1 में हेलो नहीं, यहाँ तो बाय आना चाहिए था, तो आप str1 में बाय डालने की कोशिश करोगे, ये भी नहीं चलने वाला, एरर आएगा। कैरेक्टर एरे में एक बार डाटा डाल दिया जाए तो कैरेक्टर एरे के डाटा को इस तरह से नहीं बदला जा सकता। वंस इनिशियलाइज्ड यू कैन नॉट चेंज इट लाइक दिस, यू कैन नॉट री इनिशियलाइज इट लाइक दिस। ठीक है, तो ये काम जो कैरेक्टर एरे में आपने किया है वो ये वाला काम नहीं चलेगा, नहीं हो सकता। मगर पॉइंटर को बोला आप हेलो को पॉइंट करो, बाद में पॉइंटर को बोला आप बाय को पॉइंट करो, तो ये पहले क्या किया था, यहाँ पे उसने मेमोरी में हेलो को कहीं पे रखा, जहां भी रखा उस एड्रेस को पी में लाके दे दिया। अब आप अपने पॉइंटर को क्या कह रहे हो, अरे हेलो को भूल जाओ, हेलो जहां पड़ा है उसे भूल जाओ, आप तो नई जगह पे जाओ जहां बाई पड़ा है उसका पता रिसीव करो। तो पहले पी के पास क्या था, हेलो का एड्रेस, अब पी के पास क्या आ गया, बाय का एड्रेस, दिस वर्क्स, आप कर सकते हो। तो पी हेलो को नहीं पॉइंट करेगा, पी बाय को पॉइंट करने लगेगा, हेलो का पता कहाँ गया, भगवान जाने कहाँ गया। अब हेलो का एड्रेस हमारे पास नहीं है।
हमारा P एक नई लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जहाँ पे BYE लिखा हुआ है और \0 भी है साथ में, ठीक है। तो पॉइंटर्स के साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप जब चाहे अपने पॉइंटर के डाटा को बदल सकते हैं, एक पॉइंटर के दूसरे पॉइंटर के अंदर कॉपी कर सकते हैं, जो सुविधा आपको कैरेक्टर एरेज के साथ नहीं मिलने वाली। तो जो भी हम स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़ेंगे उसमें हम कैरेक्टर एरेज को यूज ना करके पॉइंटर्स को यूज करेंगे और पॉइंटर्स के साथ काम करना सीखेंगे। तो पॉइंटर की इंपॉर्टेंस को कभी भी नहीं भूलना है, पॉइंटर्स हर जगह यूज होंगे, तभी मैंने कहा है पॉइंटर्स वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो उसका जाके आप उसे एक बार देख लीजिएगा, नहीं समझ में आता है तो। वरना ये सारी चीज़ें जो आगे आपने स्ट्रिंग हैंडलिंग में पढ़नी है वो पॉइंटर बेस्ड होंगी, फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए स्ट्रिंग्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, आगे की चीज़ें आपको नेक्स्ट सेशन में कराता हूँ, जिसमें आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस और पॉइंटर्स के साथ खेलना बहुत ईजी बना देंगे और आपको सब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एनीवे, थैंक यू, दिस वाज ऑल फॉर टुडे।